Good morning, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. If you have been here, you know me. I'm your mentor and teacher in this journey. My name is Gaurav, and I have been taking UGC Net Paper 1 for a while now. Right. So, I have covered UGC Net Paper 1 three units prior to this one. And in today's video, we'll talk about Unit 4 communication. Right. So, what is the importance of this unit? How much important and relevant this unit is for your examination? We will cover each and everything in this video. Okay. So what your responsibility is to stick till the end and make sure that you uh, you know make the notes side by side, and definitely you will learn something throughout this video, right? So this is unit 4. We are talking about communication in this. Okay, we are talking about communication in this. And firstly, what I want to tell you about this unit, there the most important topic of this unit, like one of the most important topic, is the communication process. So the communication process has been covered by me already. So what you have to do is go to Talent Blazer YouTube channel. So and go to the live playlist and find my unit 4 communication. I have covered this communication process in depth, and covered your PYQ as well, your previous year questions as well, right? So as you must be aware, this is an important topic. ये काफी important topic है और ये काफी लोग cover करते हैं, right? But there is another important topic which mostly mentors, teachers does not cover. That is type of communication. टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो लोग कवर नहीं करते. काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आज की वीडियो में वील डिस्कस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन डेप्थ एंड इन डिटेल एंड as well as the characteristics of the communication. Now, what is the weightage of this particular unit? You can expect 2 to 3 questions in each set, right? आपके कितने भी सेट होते हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चन कम्युनिकेशन से आते ही आते हैं. So you have to be be smart while picking which units you have to devote how much time to, right? So ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाती है इससे कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में. Okay, so now let's start with our video with this unit. Classification of communication. So the first classification is on the base of the number of receivers. कितने लोगों तक वो बात जा रही है, right? तो ये number of receivers की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, numbers of receiver. Okay. So there are two classification based on the number of receivers. और भी हैं आगे. First these two we are talking about. First is intrapersonal. Second is interpersonal. Intrapersonal, इसकी अगर definition की हम बात करें तो it is talking to oneself in वन ओन माइंड. तो अगर मैं अपने से कुछ प्रॉमिस करता हूँ, लेट सपोज इफ आई वॉन्ट टू वेक अप अर्ली टुमारो, सो मैं अपने आप को एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, राइट? सो मैं खुद को ही दिमाग में बोल रहा हूँ कि कल मुझे इतने बजे उठना है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन. दैट इज आई एम कम्युनिकेटिंग टू माई सेल्फ, रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो, राइट? तो ये कल कल मुझे जल्दी उठना है, उस चीज़ को याद दिलाना है और खुद को याद कर रहा हूँ. तो ये दिस इज एन इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन. Now, the second one, which is mostly used and mostly known by everyone, that is exchange of messages between two person, right? तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सचेंज की, तो यहाँ पे दो लोगों की मैसेज हो सकता है, इन्फॉर्मेशन होती है, आइडिया होते हैं, थॉट्स होते हैं. तो मैसेज की जो मीनिंग है वो सिर्फ मैसेज नहीं, जो आप टेक्स्ट मैसेज करते हो, राइट? वो नहीं है. यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं. थॉट कन्वे करना, आप आइडिया कन्वे कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो, राइट? तो वो सारा इसका पार्ट बनाता है. फॉर एग्जाम्पल अ कॉन्वर्जेशन डायलॉग, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, राइट? दैट इज ए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. और एन इंटरव्यू इन विच टू पर्सन इंटरैक्ट. तो इंटरव्यू में अगर दो लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, कोई आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो, राइट? सो दैट इज एन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. अदर में ऑल्सो भी प्रेजेंट. सो देर आर अदर इंटरव्यूज एज वेल, दोज हु आर प्रेजेंट देयर. तो वो आप लेट सपोज एक ने पूछा क्वेश्चन, फिर दूसरे ने पूछा क्वेश्चन, फिर थर्ड ने पूछा क्वेश्चन. सो दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज, राइट? नॉट एवरीवन विल आस्क यू द क्वेश्चन at the same time. Okay. A letter to is an example of interpersonal communication. So this is an important part. यहाँ पे एक important part आ जाता है कि interpersonal communication में letter एक important role play करता है. Okay. तो इसको मैं highlight कर देता हूँ. A letter to is an example of interpersonal communication. लोगों को लगता है that letter is a part of interpersonal communication. Most of the aspirant and student, marks
लेटर एज एन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे उनका आंसर गलत होता है. दैट इज एन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. लेटर की अगर हम बात करें, लेटर में क्या है, आप किसी को अपने थॉट्स कन्वे कर रहे हो, बट थ्रू अ डिफरेंट मीडियम आपने पोस्ट करा है लेटर, एंड दैट लेटर हैज बीन रिसीव्ड बाय अनदर पर्सन, राइट. सो वहाँ पे आप जो राइटर और द पर्सन टू whom टू इट इज रिटन, राइट. सो वन पर्सन who has written the letter, and the person to whom it is addressed. Okay, यहाँ पे जिसको एड्रेस करा गया है, तो हम इसकी बात करते हैं. तो ये एक लेटर है, ये भी एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ना कि इंट्रापर्सनल. सो आई होप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिसीवर, ये जो है हमारा क्लासिफिकेशन, दैट इज प्रेटी मच क्लियर. दिस डिपिक्शन इज ऑल्सो the way people are communicating. So this is also a reminder so that you can easily remember through pictorial reference. Okay, now we'll move on to the next one. First one is group communication, right? So if you're communicating to, let's suppose, to a number of people, आप एक इंसान से नहीं, एक से ज़्यादा लोगों से आप बात कर रहे हो, right? Let's suppose 5 लोगों से, 5 people, 5 people you are conversing with, or basically informing them about something, right? It can be 5, it can be 10, it can be 20, it can be 40, 50, right? So it can be among small or large groups like an organization, club, or classroom. Even what you aspire to become a teacher, also communicate, also group communicate. Okay, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक ट्रिक क्वेश्चन है कि जो हमारी जो टीचिंग है वो किस कम्युनिकेशन के अंडर फॉल करती है. ग्रुप कम्युनिकेशन, बिकॉज वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को एक साथ ही पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा रहे हैं वो बच्चे, पढ़ रहे हैं. सो दैट इज अ ग्रुप कम्युनिकेशन. तो एक ग्रुप कम्युनिकेशन होता है. हम क्लासरूम की अगर बात करें तो दैट मेक्स इट एन इम्पोर्टेंट पॉइंट. इम्पोर्टेंट है क्लासरूम वाला, आपको ज़रूर ज़रूर इसको याद रखना है. तो ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करें तो हम यहाँ पे लोगों की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल और लार्ज ग्रुप्स होते हैं, राइट. पर इनसे आप डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हो, राइट. एक ऐसा नंबर है जिनको आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतने लोग हैं, इनसे हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनको हम कुछ बता रहे हैं, उसके बदले में दे आर रिस्पॉन्डिंग बैक टू अस, राइट. तो वो एक आप कह सकते हैं कि हम, देर आर नो फेसलेस इंडिविजुअल्स इन ग्रुप कम्युनिकेशन, राइट. सो ये आपको याद रखना है, दैट नो, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड. नो फेसलेस इंडिविजुअल. ओके, तो ये आपको याद रखना है ग्रुप कम्युनिकेशन. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, मास कम्युनिकेशन. ये भी एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का प्रोसेस है. इट अकर्स व्हेन द मैसेज इज सेंड टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल होता है. इट कुड बी अ स्टेट और कंट्री और मल्टीपल कंट्रीज, राइट. कंट्री और कंट्रीज. तो ये जो अगर हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन जो होती है बाय न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन, इन दिस प्रोसेस ईच पर्सन बिकेम अ फेसलेस इंडिविजुअल विद ऑलमोस्ट नो अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल रिस्पॉन्स और फीडबैक. सो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, वहाँ पे फेसलेस इंडिविजुअल है, यहाँ पे आपको मार्क करना है, जस्ट अ सेकेंड. ओके, फेसलेस इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट चीज़ है. मास कम्युनिकेशन को कैसे डिफर करती है ग्रुप कम्युनिकेशन से. नाउ आपको मैं इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं, अगर आपने थोड़ा सा भी कभी न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे, सो दे हैव डिफरेंट ओपिनियन, दे आर डिस्कसिंग अबाउट सम व्यूज, राइट. टीवी चैनल्स डिस्कस अबाउट एनीथिंग, राइट. तो अगर वो डिस्कस करें अबाउट एनीथिंग, सो दे आर आस्किंग फॉर योर व्यूज. ए, इफ यू सपोर्टेड, अगर आप सपोर्ट करते तो ए. बी, यू डोंट, राइट, अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो उसके बाद वो आपसे बोलेंगे टू वोट, टू टेक्स्ट दिस ऑन अ पर्टिकुलर नंबर. सो दे वांट टू नो व्हाट यू फील अबाउट दैट पर्टिकुलर इशू, राइट. तो आपने देखो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल कहते हैं आपको एक नंबर पे पर्टिकुलर, कुछ रैंडमली ऐसे कुछ नंबर होता है, तो इस पे अगर आप टेक्स्ट मैसेज करोगे तो, और ये ए या बी अपना चॉइस या अपना ऑप्शन मेंशन करोगे, so there you are responding back to them, right. So that is your opportunity of responding back to them, saying ki this is what I believe in, right. So this is an example of mass communication. Now based on the basis of medium employed, now we are talking about the basis, based on the basis of the medium employed, क्या medium के through हम बात करते हैं, right.
फर्स्टली इट्स वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन जैसे मैं भी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, इट मीन्स कम्युनिकेटिंग विद वर्ड्स रिटन और स्पोकन. अगर मैं कुछ बात कर रहा हूँ शब्दों से तो उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं. वर्बल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ दीज ऑल दीज थिंग्स: स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड थिंकिंग. तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या है? स्पीकिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है, रीडिंग एंड थिंकिंग है. ये सारे के सारे हैं, राइट. सो व्हाट यूजुअली हैपन, आप जैसे अगर लेट सपोज आपने टॉपिक डीपली नहीं पढ़ा, ये वीडियो नहीं देखी थी, अगर तो आपको बेसिक, व्हाट बेसिक वर्बल टर्म मीन्स: स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग. रीडिंग एंड थिंकिंग इज समथिंग. लेट सपोज आपने रीडिंग भी गेस कर लिया, थिंकिंग इज अ पार्ट विच यू वोंट बी एबल टू गेस इन द आंसर, राइट. तो अगर आपसे वो पूछ लिया व्हाट फॉर्म्स वर्बल कम्युनिकेशन, आपसे एग्जाम में पूछ लिया और ये सारे के सारे मेंशन है इन एन ऑप्शन, तो आप ये सोचोगे थिंकिंग पार्ट नहीं होगा, यू विल टेक एन अदर ऑप्शन, राइट. तो अगर आप थिंकिंग वाला पार्ट टिक नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारे के सारे पार्ट्स को याद करो. दीज आर द थिंग्स दैट हेल्प यू टू गेट JRF, राइट. तो ये आपको JRF में हेल्प करते हैं, ऑल दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स, राइट. इट मे बी फर्दर क्लासिफाइड एज ओरल एंड रिटन. जो हमारी अभी ओरल कम्युनिकेशन होती है, रिटन कम्युनिकेशन होती है. अगर मैं कुछ लिख के बता रहा हूँ तो भी आप समझ पा रहे हो, अगर मैं ओरली जो बोल रहा हूँ वो भी आप समझ पा रहे हो. सो दीज आर वर्बल कम्युनिकेशन. हम बोल के लिख के आपको समझा रहे हैं. नाउ वील मूव टू द अनदर वन, लाइक वर्बल कम्युनिकेशन हमने पढ़ा. अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बारे में बात करते हैं. इसमें हम यूज करते हैं पिक्चर्स का, साइंस का, जेस्चर्स का, फेशियल एक्सप्रेशन फॉर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन पर्सन, राइट. तो हम यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं? हम बोल नहीं रहे, हम लिख नहीं रहे, हम लिख के नहीं बता रहे, हम बोल के नहीं बता रहे, हम बट यूज कर रहे हैं पिक्चर्स का, साइंस का, जेस्चर्स का and facial expression for exchanging information between person, right. So as some of you might know it that I have taken interview classes as well on this channel. So interview classes mein if someone is sitting like this, right, so what does that gives an insight ki that person is hostile. Close postures can indicate hostility, that you are hostile to the environment that you are in right now. Unfriendliness and anxiety, that you are anxious, you are unfriendly, you are not that person who invite people, right. You are not one, you are not the one who initiates the communication, right. So what this indicates here is a person that is a hostile person, right. So यहाँ पे वो कुछ बोल नहीं रहे, वो अपने बारे में ना बोल रहे हैं, बट while seeing them, अगर आप उनको देखोगे, देर ऐसा बोला जाता है कि बिना लाइक बिना बोले भी बहुत कुछ बोल दिया. तो यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई होती है. यहाँ पे उन्होंने कुछ बोला नहीं, बट देयर द वे दे दिस पर्सन इज सिटिंग, यू कैन इजीली मेक दीज असम्पशंस कि ये पर्सन ऐसा ही होगा, राइट. अब नाउ while you know watching this person, you can say it has open posture, indicate friendliness, openness and willingness. So the chances are of recruiting a candidate, an applicant. So a positive personality, these are the positive personality sign, but this is not a positive personality sign. Though the knowledge and everything else uh, can also play an important role, but the way you sit in an interview also makes a big impression of how a person you are. ठीक है. तो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपने कुछ बोला नहीं, आपने कुछ लिख के नहीं बताया, बट स्टिल the way you were dressed, the way you were sitting, talk too much about you, right. So it includes using of pictures, sign, gestures and facial expression for exchanging information between persons. It is done through sign language, action language or object language. Now, non-verbal communication flows through all acts of speaking or writing. It is a wordless message conveyed through gestures, movement, sign, the same thing that has been written, right? Object language, objects, the clues, the way you are wearing, the way you dressed up, and so on. So this is non-verbal communication, right? तो ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, क्या इंपॉर्टेंस प्ले करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में. सो if you are one of those aspirant who wants to join the job and wants to know the basic of the interviews and the tips, so we have already created a playlist on the interview session as well, so you can watch them. They will be very beneficial for you guys, very helpful, so you can watch them as well, right. So up now, coming back to the topic, we have covered on the basis of medium employed communication, verbal communication, non-verbal communication. Now let's move to the next one. This is the relatively new, or as you can say, relatively new or
समथिंग दैट यू हैवंट हर्ड ऑफ, अगर आपने ये पढ़ा नहीं है तो आपने ये कभी सुना नहीं होगा, दिस इज मेटा कम्युनिकेशन, राइट। हम बात कर रहे हैं मेटा कम्युनिकेशन की। Here, the speaker choice of words unintentionally, यहाँ पे emphasize on the word unintentionally, आप intentionally unintentionally communicate कर देते हो कुछ ज़्यादा ही, जो आप बोल रहे हो उससे आप unintentionally कुछ और भी बोल सकते हो, राइट। जब कहते हैं ना एक ही बात के दो मतलब होते, तो वो यहाँ से that actually forms meta communication. Here, the speaker choice of word unintentionally communicates something more than what the actual word said. तो जो actually आप बोल रहे हो उससे ज़्यादा आपने कुछ बोल दिया है। इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। A flattering remark like I have never seen you so smartly dressed. तो ये कॉम्प्लीमेंट भी है और एक तरीके से आपका रीमार्क भी है कि आज आप अच्छे लग रहे हो, बट मैंने आपको पहली बार इतना अच्छे से ड्रेस हुआ देखा है, दैट मीन्स आप यूजुअली अच्छे से ड्रेसअप नहीं होते, राइट। could also mean that the regular attire of the listener need improvement. This is what meta communication, but बेसिकली सेइंग एक ही बात के दो मतलब होते हैं, राइट। तो वहाँ पे एक रिमार्क दिया कि आई हैव नेवर सीन यू सो स्मार्टली ड्रेस, मतलब आपका जो यूजुअल अटायर है दैट नीड्स इंप्रूवमेंट, वहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो दिस इज व्हाट अ मेटा कम्युनिकेशन इज, राइट। सो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट से याद करना है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे, कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे। आपको एक स्टेटमेंट दे रखी हो, उसको कैटेगराइज करना हो किस में आएगा, वो मेटा कम्युनिकेशन में आएगा, राइट। और इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की। तो एक और जो है फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, लेट्स सपोज एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टॉप मैनेजमेंट, these are the people who are controlling the organization, so control इनके हाथ में होता है, controlling the organization. Now top management cannot alone run the company, so there is lower management as well, those who are doing the work at the lower levels. तो यहाँ पे whenever they make a decision, तो जो communication, let's suppose they have make some new changes and anything they have decided with, अपनी एक मीटिंग करी, एक एनुअल जर्नल मीटिंग करी, तो उस मीटिंग में दे हैव डिसाइडेड समथिंग, दे हैव कम अप विद समथिंग एंड दे वांट लोअर मैनेजमेंट टू नो अबाउट इट, तो वहाँ से एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फॉलो अप करेगा। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ये हमें अब आगे भी पढ़ेंगे। तो एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट के पास जा रहा है, वहाँ पे दे आर वॉट एवर द डिसीजन दैट दे हैव टेकन इन रीसेंट, so they will inform to the lower management that we are deciding about this. So a formal channel of communication can be defined as means of communication that is formally controlled by managers or people occupying position in the organization. तो यहाँ पे higher position होना चाहिए था, okay? We're talking about the higher position in the organization. The communication flows through channel that is officially recognized position along the line of the organization. So manager है, CEO है, right? So example, manager, CEO, CFO, these are all those the higher post, right? So they will inform to their subordinates, who could be production manager, departmentalization, right? Production manager, department managers, right? And they will inform to their subordinates and finally to the employees working at the lower levels. This ensures that the information flows orderly, timely and accurately. Any information, decision, memo, reminder, etc. will follow this path. So any information that has been taken, any decision that has been taken, any memo, any reminder that has to be reminded to the employee, particular employee, that has to follow through the formal chain of communication, right? So ये हमारा formal communication. Now there is an informal communication. This is looked down upon. Informal communication को काफी नीचा दिखाया जाता है, looked down upon. People say that this is a necessary evil. This is an evil in the organization where people are talking. Let's suppose someone is at top management, is talking uh, with people at to the lower level of management. तो यहाँ पे lower level से बात कर रहे हो, आप अपने upper level से बात कर रहे हो, so there is no formal chain. यहाँ पे एक formal chain नहीं follow up कर रही. So if there is, let's suppose an employee who is just started newly working, directly communicate to the CEO of the company, right, to the CF of the company. So what he is doing, he is directly jumping. So informal communication हो रही है यहाँ पे, formal communication नहीं, एक formal चेन और फॉर्मल लाइन को नहीं फॉलो अप करा जा रहा,
Side by side with the formal channel of communication, every organization has an equally effective channel of communication, that is information channel, informal channel. So as I said, formal communication is what every company desire that it should be robust. तो अच्छा खासा एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक चेन फॉलो अप होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं एक अच्छा खासा फॉर्मल कम्युनिकेशन. बट हम इनफॉर्मल चैनल की बात करें तो इसमें कोई वो नहीं है. जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई लाइन नहीं होती आपकी इनफॉर्मल में. अगर कोई बात कर रहा है, सीईओ है, सो वो यहाँ पे न्यूली ज्वाइंट एम्प्लॉय, वो इनसे डायरेक्टली बात कर रहा है, यू नो इग्नोरिंग द सुपीरियर्स. जो उसके सुपीरियर है उनसे उनको इग्नोर करके वो डायरेक्टली बात कर रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर आया. फॉर्मल नहीं, आप फॉर्मल लाइन सेट नहीं कर रहे. सो इट इज ऑल इट इज क्वाइट ऑफन, इट इज इवन डिस्करेज, इसको मना करते हैं हम. जो भी न्यूली ज्वाइन एम्प्लॉय होता है उसको एक लिखा जाता है, उसको बताया जाता है दैट यू हैव टू डिस्कस टू द राइट अथॉरिटीज, एंड ओनली देन इफ लेट सपोज इट इज नेसेसरी दैट इट शुड बी मूविंग अहेड, तो वो सिर्फ फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन से मूव अहेड होनी चाहिए, that whatever complaint or issue you are having, और लुक डाउन अपॉन. सो इसको लुक डाउन करा जाता है, इसको इतना इसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन शुडंट एग्जिस्ट, ऐसे बोला जाता है. बट देन इट इज वेरी मच देयर एंड इट हैज बीन गिवन द नेम ग्रेप वाइन. इसको ग्रेप वाइन भी बोलते हैं, राइट. इसका अगर एक डायग्राम बनाना हो तो दिस कुड बी अ परफेक्ट डायग्राम फॉर अ ग्रेप वाइन. मतलब ये जो कम्युनिकेशन जो फ्लो है वो ऐसा नहीं है कि अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ये कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करता है. सो इसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इसीलिए बोलते हैं, राइट. ये कहीं भी फ्लो करता है. इट इज इवन discouraged and because it runs in all direction, horizontal, vertical and diagonal, जैसे मैंने आपको एक ग्रेप वाइन के थ्रू बताया. ओके, ये हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है और ग्रेप वाइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आप ग्रेप वाइन को आप याद कर लेना, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ. ग्रेप वाइन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. नाउ द नेक्स्ट वन, हमने जैसे अपवर्ड कम्युनिकेशन, अभी हमने डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अभी पिछली साइड में ही पढ़ा था कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता क्या है. जब टॉप मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेती है और वो लोअर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करती अबाउट दैट पर्टिकुलर डिसीजन, तो हेयर वी आर फॉलोइंग डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. ओके, दैट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. उसको जो मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू सिखाया, आप वही चीज़ अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. टॉप टू बॉटम वो फ्लो करती है, उसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. Any organization has an inbuilt hierarchical system, and in the first instance, communication invariably flows downward. तो हर एक organization में एक inbuilt होता है hierarchical system, that the people who are at the top, they are the one who are making the bigger decision. So they follow a hierarchical chain. जो नीचे जो lower employees होते हैं, they do not ask them about the things, the changes that they want to make. तो वो सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती. टॉप मैनेजमेंट सीधा लोअर मैनेजमेंट को डिसीजन सुनाता है, वॉट एवर दे डिसाइड. ओके, तो ये हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है. द कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज नोन एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. ये एक इनबिल्ट हायरार्कियल सिस्टम है, इनबिल्ट होता है, एक हायरार्कियल सिस्टम है. आप बहुत सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें भी यही देखोगे, राइट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अपवर्ड कम्युनिकेशन. सो दिस इज लाइक ऑपोजिट ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. तो यहाँ से लोअर लेवल जो है, लोअर लेवल अपनी प्रॉब्लम टॉप मैनेजमेंट को बता रहा है, राइट. सो लेट सपोज आप लोअर लेवल में काम करते हो, यू आर फ्रस्ट्रेटेड विद द वर्किंग आवर्स. आपके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, यू आर नॉट गेटिंग द हॉलीडेज, यू आर नॉट गेटिंग द पे, इवन जितना फेयर पे होना चाहिए उतना भी नहीं मिलता, एंड यू आर अनहैप्पी विद द वर्किंग कंडीशन एज वेल. तो आप बहुत परेशान हो एंड यू वांट टू रेज योर इश्यूज टू द टॉप मैनेजमेंट, राइट. तो आप एक फॉर्मल चेन ऑफ कम्युनिकेशन जाती है, अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है, लोअर लेवल से टॉप मैनेजमेंट तक जाती है, लोअर मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट तक उनका अपने इश्यूज कंप्लेन, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट तो वहाँ पे होता ही नहीं वाइल लोअर मैनेजमेंट इज वर्किंग. सो दे आर नॉट अवेयर अबाउट द इश्यूज एंड द चैलेंजेस दे आर फेसिंग. So what the lower management has to do is, basically raise this issue and make sure that communication follows through a proper channel and reaches to the top management so that they can take the right decision regarding it. तो communication that flows from bottom to top, ये चीज़ें आप याद रख लेना. मैं आपको highlight भी कर रहा हूँ इसलिए कि these are the important things that you have to remember, which is from lower hierarchical level to higher level is called upward communication. The main function of upward communication is to supply information to the upper level
अबाउट व्हाट इज हैपनिंग एट द लोअर लेवल। तो आपको एक बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जो अपवर्ड लोग हैं उनको बेसिकली ये बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, राइट, क्या क्या प्रॉब्लम्स है एंड द सिचुएशन दैट यू आर एनकाउंटरिंग, सो what you are facing, they should also be aware and they should take concrete decision to improve your situation or conditions, right। तो वो एक अपवर्ड कम्युनिकेशन में होता है। नाउ लेटरल कम्युनिकेशन, इसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। लेटरल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सो इसका मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। आई होप दिस डायग्राम इज विजिबल। इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विद द सेम लेवल ऑफ द पीपल, राइट, अगर एक जो मैनेजर है, एक डिपार्टमेंटल मैनेजर इज टॉकिंग टू अनदर डिपार्टमेंटल मैनेजर, अगर उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रही है तो उसको हम लेटरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो लेट सपोज देयर इज अ पर्सन जो है प्रोडक्शन मैनेजर इज कम्युनिकेटिंग टू वन टू हु इज द सेल्स मैनेजर। तो यहाँ पे अगर है कोई सेल्स मैनेजर है एंड देयर इज वन हु इज taking notes for the cost manager। When communication takes place between two or more person who are subordinates working under the same person or those who are working on the same level, तो ये सारे के सारे एक डिपार्टमेंटल मैनेजर थे, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इनको हम लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये तीनों एक मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, राइट। ये आप समझ जाना है कि मैं तीनों एक मैनेजर को ही रिपोर्ट करते हैं। तो अगर ये वर्किंग अंडर द सेम पर्सन, ये सेम पर्सन के काम कर रहे हैं या फिर ये सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, इसको हम लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। आपस में अगर जब बात करेंगे उसको हम लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो ये जैसे गुड एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज बिटवीन द फंक्शनल मैनेजर, जैसे मैंने आपको ये इस डायग्राम के थ्रू भी समझाया और जैसे इसके थ्रू बनाया, क्रिएट करा, इससे आप समझ जाना ये लेटरल कम्युनिकेशन हो रही है विद इन द सेम लेवल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर्स एंड द पोजिशन दैट पीपल आर होल्डिंग, राइट। इसको हम लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। you need to remember all the there are other names as well, because maybe in the examination you won't be getting a lateral communication, you will be getting a horizontal question, horizontal communication question, so you have to make sure आप कंफ्यूज ना हो। ओके, ये चीजें आपको मार्क करनी होती है, तभी मैं इनको हाईलाइट भी कर रहा हूँ साथ ही साथ। ओके, जस्ट अ सेकंड। नाउ we are talking about diagonal communication, so this is an important topic, diagonal communication। diagonal और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बोला, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी रिमेंबर द अदर नेम एज वेल। क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन इंक्लूड्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन among person at different level who have no direct reporting relationship। अगर इसका हम विद इन डायग्राम अगर ये समझे तो दिस इज द टॉप मैनेजमेंट, उनके नीचे 3 डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, उनके नीचे एम्प्लॉयज दैट दे आर वर्किंग। अब ये जो एम्प्लॉय है उसको यहाँ पे रिपोर्ट करना है, इस मैनेजर को रिपोर्ट करना है, तो उसकी जो रिपोर्टिंग, जो एक्चुअली जिसको रिपोर्ट करना चाहिए वो इसको करना चाहिए, इस पर्टिकुलर मैनेजर को। उसकी कोई रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू दिस पर्टिकुलर मैनेजर, राइट। तो यहाँ पे उसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे उसका डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप है बट उसको वो बेसिकली साइड लाइन कर रहा है, उसको इग्नोर करके वो दूसरे मैनेजर को अपनी अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, या कुछ भी फ्लो कर रहा है अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट ही शुडेंट, राइट, ही और शी शुडेंट। तो वो अपने मैनेजर के बजाय, जिसके साथ उसका डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, उसकी बजाय वो किसी और डिपार्टमेंट के हेड को बता रहा है। सो इसको हम बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन, राइट। तो इसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे इनका कोई जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसको नहीं बता रहा, जिसके साथ डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं है उसको बता रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, दैट्स हाउ यू डिफरेंशिएट डायगोनल कम्युनिकेशन विद ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, राइट। तो वहाँ पे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में, वाइल वी टॉकिंग अबाउट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वहाँ पे आपका कोई रिपोर्टिंग रिलेशन ही नहीं होता, वहाँ पे यू आर जस्ट टॉकिंग इनफॉर्मली, राइट। आपकी कुछ इनफॉर्मल रिलेशन है विद सम पर्सन, वहाँ पे आप कुछ डायरेक्टली नहीं बात कर रहे, इनफॉर्मल, you have relation with someone outside the premises of the office, right। तो अगर आप बाहर से किसी को जानते हो, तो you can casually discuss about how it is going in your department and how are the employees working, our department is making progress, what do you think about the whole company making a good progress or not। So that is an informal communication। So I hope the difference between informal and diagonal communication is clear। okay, ये जो है डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर है, इसको ये दिस हैज टू बी नोन, राइट। बस आप ये याद रखना कि नो डायरेक्ट रिलेशनशिप इसमें
यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, उसको इग्नोर करके इसको इग्नोर करा जा रहा है। एंड टॉकिंग विद समवन और इन्फॉर्मिंग और कम्युनिकेटिंग विद समवन जिसके साथ आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, उसमें हम डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। Now we are talking about the characteristics of communication. This is also an important topic, right? Characteristics of communication. फर्स्टली इट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पर्सन। कोई कम्युनिकेशन हो रही है तो यहाँ पे 2 पर्सन तो होते ही इन्वॉल्व। आप अपनी बात खुद से करते हो, दैट इज इंट्रापर्सनल, राइट। बट अगर आप किसी और को कुछ अपनी बात बता रहे हो, आप कुछ यू you नो know, एक सेंडर हो, किसी और को अपनी इंफॉर्मेशन, थॉट, आइडिया, मैसेज बताना चाहते हो, तो वहाँ पे 2 पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए। एक होना चाहिए सेंडर, एक होना चाहिए रिसीवर। ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी, दो से ज़्यादा, बट एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए। सेंडर को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेटर। जो अपना कम्युनिकेशन करना चाहता है, जो कम्युनिकेशन कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेटर। नाउ द रिसीवर ऑफ द मैसेज इज नोन एज कम्युनिकेटिव। तो ये लोगों को नहीं पता होता है कि रिसीवर को कम्युनिकेटिव भी बोलते हैं। दिस इज वेयर द क्वेश्चन कम्स, राइट। एग्जामिनर ऑल्सो नोज कि आप कितना पढ़ के जा रहे हो, क्या पढ़ के जा रहे हो और क्या नहीं पढ़ के जा रहे हो। तो वहीं पे वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वहीं आपको ट्रिक करेगा कि यहाँ पे ये बताओ, कम्युनिकेटर तो ठीक है आपको पता होगा, कम्युनिकेटिव कौन होता है? अगर आपको नहीं पता, यू विल डेफिनेटली मेक एम एरर एंड मिस्टेक एंड यू विल लूज आउट ऑन एन इजी क्वेश्चन। तो आप इजी क्वेश्चन मिस कर दोगे। सो यू हैव टू रिमेंबर कि सेंडर को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेटर। और जो रिसीवर होता है उसको हम कम्युनिकेटिव बोलते हैं। मैसेज इज अ मस्ट। एनी मैसेज विदाउट अ कम्युनिकेशन इज नॉट अ कम्युनिकेशन। अगर आपको कुछ कम्युनिकेशन करना है तो वहाँ पे कुछ होना भी तो चाहिए, किस चीज़ को कम्युनिकेट कर रहे हो, राइट। एक मैसेज, एक थॉट, एक आइडिया, कुछ चीज़ होनी चाहिए दैट यू आर कम्युनिकेटिंग टू समवन, राइट। अ मैसेज इज अ सब्जेक्ट मैटर। कुछ है, आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो टू द अदर पर्सन, राइट। आप कुछ बताना चाहते हो, आप कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हो, आप देयर इज समथिंग यू वांट टू आस्क, यू वांट टू आस्क समथिंग, राइट। तो वो भी मैसेज इज अ मस्ट। एग्जाम्पल, द कंटेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ स्पीच, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और द सजेशन। तो यहाँ पे भी आप कुछ मैसेज दे रहे हो, आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, आप किसी को सजेशन दे रहे हो, तो एक मैसेज होना जरूरी है, इज अ मस्ट इन अ कम्युनिकेशन। आप विदाउट अ मैसेज देर इज नो कम्युनिकेशन, राइट। आप कुछ बता ही रहे हो तभी तो कुछ कम्युनिकेट करना कर रहे होगे। Communication may be written, oral or gestural. So we have covered verbal and non-verbal communication. So this forms a part of it. I hope ये अभी याद ही होगा because we have just covered it. Verbal and non-verbal form of communication, right? कैसे होती है वो चीज़? Okay. I hope this is very much clear to everyone. Communication may be written, oral or gestural. Okay. Communication is a two-way process. Just give me a second. कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। इसको एक टू वे प्रोसेस है। आप किसी को कुछ बताते हो, सो यू वांट अ रिस्पॉन्स, और वांट, यू आर वेटिंग देम टू रिस्पॉन्ड टू इट, राइट। इट इन्वॉल्व्स बोथ इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, आप दूसरे से पूछ रहे हो कि आपको वो समझ आया कि नहीं, राइट। यही आपको ये भी चीज़ करनी है कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, आपको ये जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वो समझ में आ रहा है, तो कमेंट में मेंशन करना है, राइट। कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है अबाउट द सेम, दैट वी आर लाइकिंग द कंटेंट, वी लव द कंटेंट, and this content is very helpful for your examination preparation, so that you have to mention in the comment section as well. It involves both information and understanding. Communication is not complete unless the receiver has understood the message properly and his reaction or response is known to the sender. तो अगर जो आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये वीडियो में आपको एक कम्युनिकेशन चैप्टर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो what I want in return is you actually commenting in the comment section that you were able to understand this particular topic, right? तो आपको वो एक कम्युनिकेशन करनी है अपनी एंड से, जिससे कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा हो, कंप्लीट हो। तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। इसको हम कंप्लीट तब बोलते हैं जब, जैसे मैंने एज अ सेंडर आपको यू कम्युनिकेट करा इस चैप्टर के बारे में, सो एज अ रिसीवर यू हैव टू रिस्पॉन्ड एज वेल। ओके। इट इज इट प्राइमरी पर्पस इज टू मोटिवेट अ रिस्पॉन्स। तो सबसे अगर सिंपल सी बात मैं बोलूँ, इसका मकसद क्या है? टू मोटिवेट अ रिस्पॉन्स। वाई वी आर कम्युनिकेटिंग? एक मैसेज, एक आइडिया, एक थॉट, एक इन्फॉर्मेशन हम कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं? जिससे मैं आपसे कुछ रिस्पॉन्स ड्रॉ करूं। अगर आपको कुछ समझ में आया, सो आई वांट टू नो दैट वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और इट ना और नॉट। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, दैट दैट इज व्हाई आई एम सेइंग टू यू गाइस दैट यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक or you are lacking the content or not. So that is basically the reason why I'm saying it is to motivate a response from you all. Okay. तो कम्युनिकेशन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? एक मोटिवेट करना, एक रिस्पॉन्स को, दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट। यस,
यस और नो। ओके, सो ये चीज़ है, एक इसका मकसद क्या है, प्राइमरी पर्पस इज टू मोटिवेट अ रिस्पॉन्स, राइट। Now, we are towards the end, and in the quick session summary, what I have to brief about is कि जो types of communication है, इसमें what you can expect, what kind of question you expect, you can expect statement based question, आपको statement based questions आएंगे, right? Statement based questions. You can expect question on grapevine communication. Grapevine is an important topic. Grapevine communication, informal communication का part बनाता है, right? Grapevine communication पे you can expect a question, and you know, all the highlighted words, all the highlighted words needs to be noted down, तो आपको नोट करने हैं, ठीक है, जिससे आप क्विकली रिवाइज कर पाओ जब भी आपका एग्जामिनेशन नियर बाय हो, राइट। एंड योर यूजीसी नेट, आपको पता होगा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम डेट्स भी आ गई हैं, फॉर्म एग्ज़ाम डेट्स आर आउट। ओके, सो अब ये आपका मार्च या फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, एंड यू हैव योर एग्जामिनेशन सून, तो उसके लिए यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे स्टेप। जब भी आप ये वीडियो देखो तब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। उसके बाद अटेम्प्ट, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसके लिए भी मैं एक सोल्यूशन बताऊंगा कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी 10x बूस्ट हो जाए, राइट। 10x बूस्ट मिलेगा उससे, किससे, PYQ से, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, एक्सप्रेस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ग्रेफाइड कम्युनिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल द हाईलाइटेड वर्ड्स नीड टू बी नोटेड डाउन from your end, and UGC NETs के exam dates are out. So for all the aspirant who has been preparing, you know, it's a happy news for them, and for all the others who are starting their preparation, this is the time that you have to buckle up and you have to make sure that you definitely do and crack and get JRF in your first attempt, in your attempt, in your first attempt, in your next attempt, right? So target JRF, target करना है, target JRF, कुछ और कम नहीं, JRF पे टारगेट, यहीं पे यू नो फोकस ऑन दिस, नज़र इस पे ही रखो, फोकस नेट पे नहीं, JRF पे, उस पे रखोगे तो क्लियर होगा, ओके। नेट पे फोकस रखोगे तो डामाडोल भी हो सकता है, फोकस ऑन JRF, ओके। नाउ what you can do this is, you know, firstly, if you want to, you know, improve your preparation, you want to enhance your preparation, if you want to enhance your preparation, you can claim your essential ebook on communication। आप ebook जो communication पे, इस पे आपका कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन यूनिट इन डेप्थ, कम्युनिकेशन यूनिट इन डेप्थ कवर्ड है, इन डेप्थ इसको कवर कर रखा है। उसमें आपका क्या फ़ायदा है, आपको पूरा का पूरा एक साथ रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा और आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। ई बुक का और क्या फ़ायदा है, ई बुक का एक एडेड एडवांटेज क्या है, लेट्स सपोज यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मेट्रो और एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सो उस टाइम पे भी आपको यू डोंट हैव टू कैरी अ बुक, एक फिजिकल में यू हैव टू कैरी अ बुक। ई बुक को आपको अपने फ़ोन पे इजीली रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 098739076000, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, क्लेम करो अपना ई बुक असेंशियल, एंड ये खुद भी क्लेम करो, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो, जिससे वो फटाफट ये 35 पेपर नॉलेज बूस्टर ऑन कम्युनिकेशन दे कैन गेट इट। जैसे मैंने आपको एडेड एडवांटेज बताया, यू कैन ईजिली रीड कम्युनिकेशन यूनिट, कवर कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम पे, उससे आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। कवर अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा से आपको कवर करना इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से कवर कर सकते हो इसको, पूरे यूनिट को, और अपने ईज पे अपने अकॉर्डिंगली आप कवर कर सकते हो। ई बुक का ये फ़ायदा रहता है, ई बुक का, ठीक है। तो ये फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं लग रही, सो व्हाट इज़ द हार्म, कोई हार्म ही नहीं है, तो वो चीज़ करने में कोई दिक्कत या कोई इशू नहीं आना चाहिए। बस आपको एक व्हाट्सएप करना है ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, एंड यू विल एबल टू एक्सेस the claim for your ebook on communication, right? Now, thank you all for joining. If you are here for the first time, download the Talent Blazer app from the Play Store. The link for the same will be mentioned in the description below. और जो मैं आपको बोल रहा था 10x आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कैसे करेगा, PYQ से। PYQ कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे। PYQ कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे, टैलेंट ब्लेजर की ऐप पे। सो PYQ में सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं, क्वेश्चन के साथ आपको प्रॉपर सोल्यूशंस मिलेंगे, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को
एक बार मेजर कर सकते हो इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ है, किस किस एरिया में यू नीड इम्प्रूवमेंट, दैट ऑल यू कैन एसेस, राइट। तो वो सारी चीज़ें आप एसेस करते हो, एक एसेसिबिलिटी मिल जाती है। यू कैन एनहांस योर प्रिपरेशन बाय डाउनलोडिंग दिस ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। दिस इज ऑल्सो फ्री, ये भी फ्री है, सब चीज़ फ्री है आपके लिए। सो बस टाइम डिवोट करना है, राइट। सो द लिंक फॉर द सेम विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड इफ यू आर हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू like the video, share and subscribe to the channel, so whenever I come with the next video on the next unit, you are aware about it, right। so आपको जब भी मैं नई वीडियो बताऊँ, नई यूनिट के साथ, तो आपको पता हो, और यू कैन डेफिनेटली क्लेम योर ई बुक फ्रॉम देयर एज वेल, राइट। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो आप अपनी ई बुक ऑन द नेक्स्ट यूनिट भी क्लेम कर सकते हो। ऐप स्टोर से ये ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, और आप पहली बार आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।